multiple inheritance means what? That is the sorry for this is the on corruption is there. So we are going to talking about not multiple. We are going to talking about first of all multi-level, not multiple. Okay, multi-level inheritance we are going to talking about today. So now we have to the multi-level inheritance concept. We have to understand what is happening. So I have the here three levels. One level is this block. So I am just going to assume this is one block, this is the second block, this is the third block. So in object oriented programming concepts, we are going to talking about this is the one class, this is the my second class, this is my third class. What I am going to do, all of these features of this class, we are going to bringing out into this class. And whatever is features is here features is available of the both class, right? Of this class also and this class also. So next what I am going to do, I am going to inherit all these features into this class. Getting a point? All these features is coming here. So what I am going to do, from this level to inherit to this level and then goes to the this level. अगर हम हिंदी में बात करें तो हम इस क्लास की जो फीचर्स है उसको हम इस ब्लॉक में दे रहे हैं, इनहेरिट करा रहे हैं। और यहाँ का जो फीचर्स है, यहाँ तो ऑलरेडी जो फीचर्स वो तो है ही, और इस क्लास का जो फीचर्स है दोनों फीचर्स हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस लेवल से मैं दूसरे लेवल में फीचर्स को इनहेरिट करा रहा हूँ, और ऐसे लेवल की इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। So I have the first level, this is my second level, this is my third level. So on that level we are going to inherit it. So this form is the hierarchy nature, right? So hierarchy nature means what? Anybody can tell me and discuss about that hierarchy nature. Do you have any idea about the hierarchy nature? Transmitting of सर पेरेंट characteristics for Sorry. बोलो पल्लवी। नहीं बोलो बोल रही थी अब बोल। नहीं नहीं Okay. बोलो Okay. Don't want to speak fast. Don't interrupt. So we have the, okay, no problem. So we have the one level, second level, three level. So we are going to inherit one by one. First, this level features we are coming to this level, and all these features is coming to this level. This is our level we are going to inherit. So what I am going to say, this is the multi level. Why? Is because we are going to inherit from more than one level, right? अब ये जो क्लास होगा ना, ये जो ब्लॉक होगा, ये हमारा सुपर क्लास होगा। कौन सा क्लास होगा? सुपर क्लास। इस क्लास को कौन सा क्लास बोलेंगे? सुपर क्लास। बिकॉज फ्रॉम हियर दैट्स ऑल दिस फीचर्स इज इनहेरिटिंग इनटू दिस क्लास। अब यहाँ पर जो हमारा ये ब्लॉक्स है और ये ब्लॉक्स है, ये अगर हम बात करें अगर फैमिली रूप में लेकर, तो ये हमारे ग्रैंडफादर होंगे अगर हम बात करें एक तरीके से। और ग्रैंडफादर के जो सन है वो हम अगर मान लेते हैं हम ये हैं, so this is I am dad, this is my father, and my father's father is the grandfather, right? So this is the super class। उसके बाद से हमारे फादर आए, फादर के बाद से हम आएंगे, हमारे बाद से नेक्स्ट जनरेशन आएगी। इसी तरीके से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस चलते रहेगा रियल लाइफ में, राइट? सो अगर हम इन दैट मोमेंट वी हैव टू टॉकिंग अबाउट द दिस इज द सुपर क्लास। इस क्लास को हम बोलेंगे दैट इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ दिस वन, राइट? दिस इज द चाइल्ड ऑफ दिस वन, क्लियर? एंड दिस वन इज नोन एज ग्रैंड चाइल्ड। मतलब ये जो ब्लॉक है ग्रैंड चाइल्ड होगा किसके लिए? इस ब्लॉक के लिए। लेकिन इस ब्लॉक के लिए क्या होगा? चाइल्ड क्लास होगा। इसका पेरेंट्स कौन है? ये है, क्लियर है? So for this child class, this is a parent class, right? And this, if we are going to talking about this is child class, so this is your parent class। लेकिन अगर पूरे की बात करेंगे, होल इंटायर लेवल्स की बात करें, तो ये हमारा होगा ग्रैंड क्लास, दैट इज द ग्रैंड सुपर क्लास। और इसके लिए ये सुपर क्लास होगा और ये चाइल्ड क्लास होगा। अगर पेरेंट चाइल्ड में डिस्कशन करें, this is our grandfather, this is our father, and this is I am, so this is my parents, right? So in that way we can talking about the multi-level inheritance in this way। मतलब one by one level we are going to inherit here, right? From beginning, from top to bottom, and this is the multi-level inheritance concept। अब यहाँ से बात करते हैं कि ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमको। एक तो मैंने बताया रियल लाइफ में हम अपने फैमिली में जाकर अपने बात करें कि
जनरेशन कैसे आगे बढ़ती है, वो ऐसे बढ़ती है, मल्टी लेवल में बढ़ती है। क्लियर है? और उसी तरीके से हायरार्की नेचर्स में निकलती जाती है, अगर हम रियल लाइफ के एप्लीकेशन की बात करें। लेकिन अब हम चलते हैं टेक्निकल एप्लीकेशन में। टेक्निकल एप्लीकेशन मतलब क्या? आईटी सेक्टर्स की तरफ मूव करते हैं, उसमें समझते हैं कि मल्टी लेवल वहां यूज कहाँ होता है। तो देखो, जब हम मोबाइल ऐप्स यूज करते हैं ना, तो मोस्टली वहां पर हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यूज होता है। और सेकेंड थिंग्स, जब हम कोई भी चीज अपडेट करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सैमसंग का वर्जन है, मैंने पहले सैमसंग वर्जन 1.1 लिया, तो मैंने क्या किया, सैमसंग 1.1 पहले खरीदा था, फिर देखा कि उसका नेक्स्ट वर्जन आ गया 2.1, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग का। तो नेक्स्ट वर्जन आने का मतलब क्या है कि वाट एवर इज फीचर्स इज ईयर इज गोइंग टू ऑल्सो इम्प्लीमेंट इज दिस ईयर। तो जो भी इसका फीचर था वो यहाँ पर रहेगा, लेकिन कोई नया चीज मॉडिफाई हो गया यहाँ पर उसके साथ, तो उसको हम 2.1 वर्जन बोल दिए। फिर हम नेक्स्ट में जाके देखें कि अब जो है सैमसंग का 3.1 वर्जन अभी लेटेस्ट आया हुआ है। तो ये जो है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वहां पर। मतलब 1.1 से गए 2.1 में, और 2.1 से आए 3.1 वर्जन में। तो जो भी हम अपडेट देखते हैं, सिस्टम में देखें, मोबाइल एप्लीकेशन में देखें, या किसी भी थिंग्स एप्लीकेशन में देखते हैं, जो भी अपडेट की प्रोसेस होती है वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को फॉलो करती है। दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू basically follow over the multi-level inheritance concept. So I hope this is the theory part is completed. We are coming to the practical session. So lastly, I'm going to conclude multi-level inheritance from one block to other block, and then blocks to go to the next block. And this is your multi-level inheritance, right? And this one is your no. This class is known as your child class. ये कौन सा class होगा? Child class होगा. Clear है? So now we are coming to the if you want to draw the diagram you can draw, otherwise we are going to move on the next part, because I am not going to give the time to you today, because this one I already explained in the previous class, right? We are coming to the next moment on the practical zone, see understand in that. So in code block id we are coming to this here, and I am just creating the one class. This is the Samsung class. अभी सैमसंग क्लास को मैंने जो ए सैमसंग ए राइट किया, और इस क्लास के अंदर व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज द पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर मोड, बिकॉज वी हैव टू टेल टू द सी प्लस प्लस कंपाइलर, भाई मैं जो है ना अभी पब्लिकली एक्सेस यूज करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्राइवेट अभी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा सभी डेटा एक्सेस करे, तो मैं कंपाइलर को ये बता रहा हूँ अभी पब्लिक मोड से। सो वी आर कमिंग टू दिस मोड, and in that we are going to create one method. This is the configuration method. So what I'm going to do, this is the configuration method name, and return type is the void, and in that we are going to print some message. So I'm going to say Samsung A की जो configuration है वो 4 GB है। 4 GB क्या है, so this is not looking a good, so I'm writing the 4 GB RAM, right? And here is the i5 CPU we are going to use. तो सैमसंग ए में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 4 GB रैम का है, और i5 प्रोसेसर यूज कर रहे हैं उसमें। क्लियर है? और इन दैट वी आर गोइंग टू यूज द इंटेल, एज वी नो दैट दिस इज द न्यू लाइन वी आर गोइंग टू प्रिंट इट, and in double quote we are going to find out the string, right? I am coming to this class is for Samsung A. Entire class from here to here. This is the class A, Samsung A. So whatever is features of this class, I am going to bringing out into the class Samsung B. तो Samsung B एक मैंने क्लास बनाया हुआ है, और इस क्लास में मैंने Samsung B के लिए कॉन्फ़िगरेशन राइट किया है। तो Samsung B का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 16 GB है, और 16 GB मैंने यहाँ पर भी रैम कर दिया, और i7 CPU कर दिया यहाँ पर, राइट? सो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है Samsung B का वो ये है। बट यहाँ पर इस क्लास में, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, इस क्लास में यहाँ पर सिर्फ क्लास का ही फीचर्स है, सैमसंग बी का ही फीचर्स है, बट हियर इज नो एनी फीचर्स ऑफ क्लास ऑफ सैमसंग ए। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इनहेरिट हियर। किसको इनहेरिट करना है? इस सैमसंग ए वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको मुझे यहाँ पर लाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सीधा सा कॉलम यूज करूँगा इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस के लिए,
और किस टाइप का इनहेरिटेंस, तो हम कहेंगे पब्लिकली ही चलेगा अभी। तो पब्लिक राइट किया और अब क्लास का नाम देंगे। तो हमने क्या लिया था, सैमसंग ए क्लास का नेम है, उसका इनहेरिटेंस हम सैमसंग बी में करा रहे हैं, तो इसको लेंगे और इंटर प्रेस में। तो जो सैमसंग ए का जो फीचर्स है वो अब चला आया सैमसंग बी में, तो हम सिंपल सा बोलेंगे कि इसका जो फीचर्स है वो आया कहाँ पर, सैमसंग बी में आ चुका है इसका जो फीचर्स है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इंटायर कॉन्सेप्ट, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इस तरीके से इनहेरिट करते हैं अपने क्लास को। क्लियर है? तो अभी मैंने क्या किया कि सैमसंग ए, मतलब देखिए यहाँ पर अगर मैं चलूँ अपने इस कंट्रोल में, तो यहाँ पर सैमसंग ए क्लास है और इसके फीचर्स को हमने बी में ले गए। अभी तक हमने ये किया हुआ, ए से बी में गए। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू दिस पार्ट, सैमसंग इज द फीचर्स इज कमिंग टू द सैमसंग बी। नाउ नेक्स्ट क्लास वी आर टेकिंग द सैमसंग सी, सैम सी वी आर गोइंग टू यूज। तो सैमसी जो क्लास हमने लिया हुआ है, यहाँ पर पब्लिक मोड से एक्सेस स्पेसिफाई किया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैं पब्लिक इस तरीके से हमें राइट करना होगा सी प्लस प्लस में। और नाउ वी आर गोइंग टू यूज द वाइड कॉन्फ़िगरेशन, वी आर गोइंग टू यूज सो वाइड कॉन्फ़िग मेथड, वी आर गोइंग टू यूज दैट। और इसके लिए जो मैंने लिखा 32 टेराबाइट रैम है, 32 terabyte is the RAM and is the 18 is the our CPU pro. So this is for the SAMC features. ये जो फीचर्स है किसका है, सैमसी का, सैमसंग सी का। बट अभी सैमसंग सी में ना तो बी का फीचर आया हुआ है और ना ही ए का फीचर आया हुआ है, राइट? तो अभी तो मैंने ए से बी में ले गया, ए का जो फीचर्स है वो तो बी में आया हुआ है। क्लियर है? सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ए का फीचर्स बी में आया हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो फीचर्स है, वी आर कमिंग टू दिस पार्ट सैमसी में, यहाँ पर मैं बी क्लास के फीचर्स को इनहेरिट कराऊंगा सैमसंग बी में। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अगेन वी आर गोइंग टू यूज कॉलम, और यहाँ पर अगेन एक्सेस स्पेसिफायर वी हैव टू गिव, सॉरी फॉर दैट, और वी नीड अ पब्लिक बिकॉज वी आर गोइंग टू इनहेरिट द पब्लिकली मोड। और यहाँ पर मुझे किस क्लास का फीचर्स लाना है सैमसी में, मुझे सैमसंग बी का फीचर लाना है। तो मैं सैमसंग बी का फीचर्स यहाँ पर लिया, तो क्लास का नेम जो है वो राइट करो, और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर मोड हमने डाला हुआ है कि वी आर गोइंग टू एक्सेस इन अ पब्लिकली मोड। क्लियर है? और नाउ सी दैट, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, अंडरस्टैंड, ए क्लास का जो फीचर्स है वो कहाँ आ गया है, बी में आ गया। अब इसका ये जितना भी फीचर्स है हमने यहाँ पर इनहेरिट करा दिया, ये हमने इनहेरिट कराया। सो जो इनहेरिट कराया उसका जो फीचर्स है वो बी में चला आया। सो नाउ वी हैव द आल्सो द क्लास फीचर्स ऑफ बी। सो हमारे पास वी हैव द आल्सो न्यू फीचर्स ऑफ क्लास बी, सैमसंग बी। और नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू यूज द आल्सो फीचर्स ऑफ सैमसंग ए। उसका जो हमारे पास फीचर्स है वो अब कहाँ पर आ गया, सैमसंग बी में आ गया। तो नाउ आई एम रेडी टू एक्सेस बोथ फीचर्स एट अ टाइम थ्रू ऑब्जेक्ट ऑफ सैमसंग बी क्लास, either A or B class. I can access the features of both class. Right now I am able. This is the inherit for the one level. So next what I am going, जो भी सैमसंग ए का जो फीचर्स है बी में आया हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो फीचर्स है उसको मैं दूसरे क्लास में ले लूँ। तो मैंने यहाँ पर सैमसंग सी क्लास बना लिया और यहाँ पर सैमसंग बी के फीचर्स को मैंने इसमें पुट कर दिया। मतलब क्या कर दिया कि सैमसंग बी का जो फीचर्स है वो सैमसंग सी में ले आया। क्लियर है? Now we have to understand this mode is going to that all these features is coming in the public mode, and that's one other method config we are going to use, and all these features of Samsung B is coming to the Samsung C class. So now I have to create the object of Samsung C. So अभी तक हमने क्या किया कि Samsung A का जो फीचर्स है वो B में लाया और B का जो फीचर्स है वो कहाँ पर लाया, C में लाया। क्लियर है? तो whatever is features of A is bringing out into the B, and whatever is features of B as well as the features of A
we are going to bringing out all of these features into the class C. Right now, I am going to create the object of this class C. We are going to create of this, right? अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि मेन फंक्शन में हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो सैम सी के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि इसी में हमारा सारा फीचर्स आया हुआ है। और ऑब्जेक्ट का हम नाम ले रहे हैं AAP, फॉर माय ऑब्जेक्ट नेम इज अ स्टैटिक। क्लियर है? और दिस इज माय ऑब्जेक्ट नेम, एंड वन मोर थिंग हियर इज द this is our object name AAP. So object name is that your AAP is your object. Sorry for that. This is the AAP object. Now I can access through this object all of the features of whatever is class A, class B, class C. So what is at AAP dot, here you can see मैं यहाँ पर तीन मेथड को एक्सेस कर पा रहा हूँ, config, configure, configuration। मतलब ये कहाँ कहाँ के फीचर्स है। config जो है किसका है, सैमसंग बी का है। तो obviously if I am going to create the object of SAMC, I can access of this of method, there is no problem. But I want to see that I can access apart from these features. Yes, I can also access the configure features, I can also access the configuration features. So आप जिस वे में एक्सेस करना चाहते हैं, whatever your need as a platform in the right now moment, you can access any features. अगर हम बात करें कि हमें अभी कॉन्फ़िगर मेथड की ही जरूरत है, तो मैं इसको एक्सेस कर लूंगा। अब मुझे दूसरे की जरूरत नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। अगर मुझे सारे की जरूरत है तो मैं ऑल द वन बाय वन एक्सेस कर लूंगा। कॉन्फ़िग एक्सेस करूंगा, देन एपी डॉट, देन कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस करूंगा। क्लियर है? सो इन दैट मोमेंट्स वी कैन एक्सेस। नाउ वी हैव टू बिल्ड एंड रन। अब देखते हो सकता है कि ह्यूमन बॉडी से कुछ मिस्टेक हो भी जाती है, right? So we are going to check and build and run this, going to the execute or not. This is a totally right form. So this we are going to access 16 GB RAM, i7 CPU, 32 terabyte RAM, 18 CPU, 4 GB RAM, 15 CPU. One more thing, i5 CPU is here. यहाँ पर जो मैंने एक्सेस किया है ना, उसी एक्सेस में प्रिंट करेगा, ये ध्यान रखिएगा। आप जिस तरीके से यहाँ पर एक्सेस करेंगे ना डेटा को, वैसे ही आपका एग्जीक्यूशन होगा। अगर आप पहले जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो मेथड है कॉन्फ़िगरेशन, इसको एक्सेस करेंगे तो पहले ये प्रिंट होगा। अगर उसके बाद आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो ये प्रिंट होगा। उसके बाद आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो ये प्रिंट होगा। सो इन ऑर्डर टू whatever do you want to access as your requirement, you can access. Clear? Any doubt? क्लियर है सबका? यस और नो? Yes, sir. चलिए, सो यहाँ से आप लोग राइट करिए फर्स्ट से। मल्टी लेवल लिखवाया था ना, लिखवाना पड़ेगा। कंप्लीटेड? यहाँ तक कंप्लीट हो गया सबका? No, sir.
I can move. मूव करें इतना कंप्लीट हो गया आप लोग का? Yes, sir. I can move. All of you completed up to this point? Yes, sir. Okay. Now this part is completed. We are coming to the. All of you completed. So this is our multi-level inheritance concept, right? Write at application of multi-level inheritance. We are going to move from here. So next our write at application right. So which application of multi-level इनहेरिटेंस हम इसका जो एप्लीकेशन है किसका एप्लीकेशन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एप्लीकेशन हम लोग शो करते हैं तो फर्स्ट राइट करेंगे अपडेट ऑफ एनी एप्लीकेशन फर्स्ट अपडेट ऑफ एनी एप्लीकेशन सेकेंड अगर हम सेकेंड एप्लीकेशन की बात करें सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ऐप वर्जन in app version like 1.1 1.2 1.3 clear hai? So this is our multi-level inheritance concept. So next we are going to take the very interesting topics that is the multiple inheritance. So we have to understand what is the multiple inheritance. This part is completed all of you. So we are coming to this moment multiple inheritance concept. So now we are going to write multiple sorry for that some multiple inheritance, right? So we are going to this is our topics is that some multiple inheritance. Okay, so we are coming to this moment. What is the multiple inheritance? Multi-level and what is multiple? We have to understand. First, we are going to talking about multiple, and one we have the multi. We have the multi-level, right? This is the multi-level and one is the multiple. We have to understand. So multiple means what? That means we are going to say multiple means more than one. More than one. This is our multiple. The meaning of that. More than one. The meaning of this multiple.
And if you are going to talking about multi-level, that's where say label, and that label is the multiple. Means I have the one level, second level, third level, fourth level. So this we are going to say this is the multi-level. This is our level is the multi-level. But multiple inheritance means what? Suppose I have the two blocks is here, one blocks and second block I have, and I have the next block, that is the we are going to talking about. So I have the one block. This is the my block is here, and this block is that we are going to talking about the this point is here. So I have the three blocks, 1, 2, and 3. So more than one means what? I have the some blocks, some classes is here. We are going to inherit the features of this block into this class. Clear? And whatever is features of this class, we are going to inherit also into this class. That means in a single class, we are going to inherit the features of more than one class. हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक क्लास में एक से अधिक क्लास के फीचर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो मतलब एक क्लास हमारे पास ये था, एक क्लास ये है, और मान लेते एक क्लास और है हमारे पास. सॉरी फॉर दैट, वन क्लास वी हैव टू द मोर. सो इसके क्लास के फीचर्स को अगर हम इसमें ला रहे हैं, मतलब एक सिंगल क्लास में ला रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे मोर देन वन इनहेरिट कर रहे हैं. और इसका मतलब क्या है? मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट की तरफ हम यूज कर रहे हैं. So simple the meaning of multiple inheritance. We are going to bringing out the features of more than one class into one class, into only single class. अगर हम सिंपल सा हिंदी लैंग्वेज में बात करें इंडियन होकर, तो भारतीय कैसे बोलेंगे इसको? वो बोलेंगे कि यदि हमारे पास 3 ब्लॉक्स है, तो 3 ब्लॉक्स के फीचर्स को यदि हम एक ब्लॉक में ले जाना चाहते हैं, मतलब एक से अधिक ब्लॉक के फीचर्स को हम एक ही ब्लॉक में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं. क्लियर है? एनी डाउट? So that means we are going to talking about the multiple inheritance. So multiple inheritance is the simple things. You are going to inherit the features of from more than one class to the single class. Any doubt? ये है मल्टी लेवल और ये है मल्टीपल. यहाँ पर एक प्रॉब्लम एराइज होगा कि ऐसा क्या है कि सारी फीचर्स को हम मान लेते हैं, कर देते हैं, बट वन प्रॉब्लम विल बी एराइज. आई विल टेल यू द लेटर क्लास व्हाट्स द प्रॉब्लम विल बी एराइज इन द मल्टीपल इनहेरिटेंस. सो यहाँ तक सबका पॉइंट क्लियर है ना? राइट? So now what I'm going to do, just stop to this, just a little bit hold. Come to the first.